Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. तो दोस्तों आज की वीडियो में हम 29 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अमित शाह ने रिलीज़ किया पोस्टल स्टैम्प मार्किंग द 50 ईयर्स ऑफ डैश। तो याद रखेंगे, अभी रिसेंटली अमित शाह ने पोस्टल स्टैम्प रिलीज़ किया है दैट मार्क्स द 50 ईयर्स ऑफ द फेस्टिवल पंडित जसराज म्यूजिक फेस्टिवल। राइट, मार्क करके चलेंगे। ये कौन सा है? पंडित मोतीराम पंडित मनीराम संगीत समारोह। राइट, इस फेस्टिवल को बोलते हैं क्या? पंडित मोतीराम पंडित मनीराम संगीत समारोह। न्यू दिल्ली में हुआ था एंड इट मार्क्स द 50 ईयर्स ऑफ दिस फेस्टिवल। करेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये रिसेंटली एक कॉमेमोरेटिव स्टैम्प को लॉन्च किया गया। करेक्ट। एंड ये 50 साल हो गए हैं और इसका 51st एडिशन हमने अभी ऑब्जर्व किया था। करेक्ट। और ये हुआ कहाँ था फेस्टिवल? अगर देखा जाए तो हैदराबाद में इस फेस्टिवल को कराया गया था। आप यहाँ देख सकते हैं, पंडित मोतीराम पंडित मनीराम संगीत समारोह इज एन एनुअल इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल फेस्टिवल हेल्ड कहाँ पर? हैदराबाद, तेलंगाना में। एंड ये ओल्डेस्ट फेस्टिवल है हैदराबाद का। नेक्स्ट यहाँ पे याद रखेंगे, पंडित जसराम मोतीराम को सन ऑफ हैदराबाद के नाम से भी जानते हैं। इनको पद्मश्री से 1975 में, पद्म भूषण से 1990 में एंड पद्म विभूषण से सन 2000 में इन द फील्ड ऑफ आर्ट से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है, आरबीआई हैज अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ आईडीएफसी लिमिटेड विद डैश। सो अभी आरबीआई ने अप्रूव किया मर्जर ऑफ आईडीएफसी लिमिटेड विद आईडीएफसी बैंक। मार्क करके चलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, आरबीआई इन्होंने अप्रूवल दिया फॉर द रिजर्व मर्जर ऑफ आईडीएफसी लिमिटेड एंड आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी विद इट्स बैंकिंग सब्सिडरी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एज अ पार्ट ऑफ द कंपोजिट स्कीम ऑफ अमालगेशन। आईडीएफसी एफएचसीएल वुड फर्स्ट मर्ज विद आईडीएफसी एंड देन आईडीएफसी इनटू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट, सेबी हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन टू ऐड नॉमिनीज इन म्यूचुअल फंड डीमेट अकाउंट बाय डैश। तो आप जहां पे भी म्यूचुअल फंड बाय करते हैं वहां पे उस अकाउंट में आपको नॉमिनीज ऐड करने पड़ेंगे। पहले इसकी एक गाइडलाइन थी 31 दिसंबर 2024, इसको एक्सटेंड करके अब क्या कर दिया गया है? जून 2024, सॉरी 31 दिसंबर 2023 यहाँ पे डेडलाइन थी। अब इसको एक्सटेंड करके कौन सी डेडलाइन कर दिया है? वो है जून 2024, 31 जून 2024 टू बी प्रिसाइज, ये आपकी डेडलाइन कर दी गई है। ठीक है। फिर जो भी इन्वेस्टर्स यहाँ पे नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते, दे कैन ऑप्ट आउट ऑफ दिस नॉमिनेशन, एक डिक्लेरेशन देके। एंड अगर यहाँ पर आप डेडलाइन मिस करते हैं तो सेबी आपके जो डेबिट्स हैं म्यूचुअल फंड्स के उनको फ्रीज कर देंगे इन द डीमेट अकाउंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, ओएनडीसी ने इन्होंने अनाउंस किया टू सेपरेट पार्टनरशिप विद विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ओएनडीसी ने यहाँ पे अनाउंस किया टू सेपरेट पार्टनरशिप विद गूगल एंड मेटा। राइट, मार्क करके चलेंगे। तो यहाँ पे ओएनडीसी ने
यहाँ पे गूगल एंड मेटा के साथ पार्टनरशिप की। जो गूगल के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है वो है बेसिकली मेट्रो के लिए टिकट्स बुकिंग की वाया गूगल मैप्स। गूगल मैप से आप टिकट्स बुक्स कर सकते हैं, इसकी फैसिलिटी लॉन्च की ओएनडीसी ने गूगल मैप्स के साथ, गूगल के साथ मिलके एंड मेटा के साथ मिलके। यहाँ पे जो एमएसएमईज हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको ग्रो करने का काम करा जाएगा, उनको हेल्प किया जाएगा एंड व्हाट्सएप बिजनेस से यहाँ पर उनको ग्रो करने का प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ओएनडीसी ने यहाँ पे गूगल एंड मेटा के साथ टाई अप किया है, ये याद रख के चलेंगे। ओएनडीसी की अगर हम बात करें तो ओएनडीसी के यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? थेम्पी कौशी। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? न्यू दिल्ली में एंड इसको 2022 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है फिर एचडीएफसी बैंक रिकमेंडेड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ हुम एज द चेयरपर्सन फॉर द 3 years। तो अभी एचडीएफसी बैंक ने रिकमेंड किया रीअपॉइंटमेंट ऑफ अतानु चक्रवर्ती एज द चेयरपर्सन फॉर द 3 years। अतानु चक्रवर्ती इससे पहले अपॉइंट किए गए थे मई 2021 में, फिर मई 2021 से 4 मई 2024 तक ये इन पोजीशन में रहेंगे और अब इनको 3 साल से फिर एक्सटेंशन मिलने की बात की जा रही है 4 मई से 2027 तक। करेक्ट, ये इनका फर्स्ट टर्म था और इनका ये अब सेकंड टर्म रहेगा। करेक्ट। अतानु चक्रवर्ती ये एक आईएएस ऑफिसर है ऑफ 1985 बैच ऑफ गुजरात कैडर। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशिधर जगदीशन। इसको कब स्टैब्लिश किया गया? 1994 में। राइट, हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स एडहॉक कमिटी वॉज रिसेंटली फॉर्म्ड बाय आईओए टू रन ऑपरेशंस ऑफ द सस्पेंडेड डब्ल्यूएफआई। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को अभी रिसेंटली हम जानते हैं इनके इलेक्शंस हुए थे और यहाँ पर अगर आपको याद हो तो संजय सिंह ये नए प्रेसिडेंट बने थे। करेक्ट, एंड ये काफी ज्यादा क्लोज एड है ऑफ फॉर्मर डब्ल्यूएफआई चीफ ब्रिजभूषण शरण सिंह के। करेक्ट, और इनको अभी रिसेंटली इनकी जो कमिटी, इनकी जो पूरी टीम थी उनको सस्पेंड कर दिया गया था। उसकी जगह पर एक 3 मेंबर की एडहॉक कमिटी सेटअप की गई है बाय आईओए। और ये जो 3 मेंबर की एडहॉक कमिटी सस्पेंड की गई है ना, इसको कौन हेड करेंगे, इसके कौन चेयरमैन रहेंगे या इनको कौन प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया जो हेड करेंगे इस एडहॉक कमिटी के जो चेयरमैन रहेंगे वो कौन है? भूपेंद्र सिंह बाजवा। आई रिपीट, भूपेंद्र सिंह बाजवा ये प्रेसिडेंट रहेंगे, ये आपके चेयरमैन रहेंगे इस 3 मेंबर एडहॉक कमिटी के, जो कि इस डब्ल्यूएफआई की कमिटी जो ऑर्गेनाइजेशन थी इनको जो सस्पेंड किया गया है यहाँ पर उनके जगह पे जो काम काज है वो देखेंगे। करेक्ट, फिर यहीं पे याद रखेंगे रीजन क्या था इनके सस्पेंशन का? इट वाज सस्पेंडेड ड्यू टू आर्बिट्रेरी डिसीजंस बाय द न्यूली इलेक्टेड ऑफिसर बियर्स। जो इन्होंने डिसीजंस लिए ना वो प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस के खिलाफ थे और इसीलिए इनको यहाँ पे सस्पेंड किया गया और ये 3 मेंबर की एडहॉक कमिटी सेटअप की गई। आईओए की बात करें तो प्रेसिडेंट पीटी उषा, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली एंड इसको एस्टेब्लिश किया गया 1927 में। नेक्स्ट, एक्विजिशन एंड मर्जर्स पे आ जाते हैं। तो सीसीआई ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ कंट्रोलिंग स्टेक इन आरसीएल बाय आईआईएचएल, बीएफएसआई एंड एशिया। आई रिपीट, सीसीआई ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ कंट्रोलिंग स्टेक इन रिलायंस कैपिटल लिमिटेड बाय इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड, आईआईएचएल, बीएफएसआई लिमिटेड एंड एशिया एंटरप्राइज लिमिटेड। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। किस कंट्री ने कंडक्ट किया सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड फतेह 2 रॉकेट सिस्टम? आई रिपीट, फतेह 2 रॉकेट सिस्टम। करेक्ट, किस कंट्री ने कंडक्ट किया भी सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड फतेह 2 रॉकेट सिस्टम? तो ये पाकिस्तान के द्वारा अभी इंडिजीनियसली डेवलप्ड फतेह 2 रॉकेट सिस्टम को लॉन्च किया गया था एंड ये रॉकेट सिस्टम है जिसकी रेंज रहेगी 400 किलोमीटर तक की। नेक्स्ट आ जाते हैं। विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड अ मिशन टू स्टडी द अपोफिस एस्ट्रॉइड? तो इस मिशन का नाम भी आप यहां साथ साथ याद रखेंगे। मिशन का नाम है ओसाइरिस एपेक्स। ओसाइरिस एपेक्स ये एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। करेक्ट, इनके द्वारा भी एक मिशन लॉन्च किया गया ओसाइरिस एपेक्स टू स्टडी द अपोफिस एस्ट्रॉइड। ये ओसाइरिस एपेक्स मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया एंड ये अपोफिस एस्ट्रॉइड को स्टडी करने के लिए जो कि 2029 में फ्लाई बाय करेगा अर्थ के पास से, इसको स्टडी करने के लिए मिशन लॉन्च किया गया था ओसाइरिस एपेक्स। इसकी फुल फॉर्म ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटीग्रेशन रेजोल्यूशन आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी राइट अपोफिस एक्सप्लोरर, ये आपके मिशन का नाम रहेगा। एंड एस्ट्रॉइड अपोफिस को स्टडी करने के लिए टू टेक द एडवांटेज ऑफ द एस्ट्रॉइड्स 2029 फ्लाई बाय अर्थ, इसको स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया। अपोफिस एक गॉड ऑफ केओस है इन इजिप्शियन माइथोलॉजी। चलिए
नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं ऑबिट्री के ऊपर। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन जैक्स डेलॉर्स, इनका रिसेंटली निधन हो गया। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। I repeat, French politician Jacques Delors, who served as the president of European Commission from 1985 to 1995, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 98 इन पेरिस, फ्रांस। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन विजयकांत, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। ये डीएमडी के पार्टी से बिलोंग करते हैं, राइट, एंड इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्टेट न्यूज़ के ऊपर। तो अभी हुडको इन्होंने कोलैबोरेट किया गुजरात गवर्नमेंट के साथ टू फाइनेंस द हाउसिंग एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। हुडको क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन्होंने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ टू इन्वेस्ट 14,500 करोड़ रुपीज टू बूस्ट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द गुजरात बाय फाइनेंसिंग वेरियस हाउसिंग एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अगर इस एमओयू की बात करें तो द एमओयू वाज एग्जीक्यूटेड अंडर द फाइनेंशियल सेक्टर सर्विस इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, एंड ये जो एमओयू है इज द आफ्टरमैथ ऑफ द प्रपोजल्स मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्टिविटी फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अहेड ऑफ द 10th एडिशन ऑफ द वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024। और ये 10th वाइब्रेंट गुजरात समिट के दौरान याद रखेंगे इवन टेस्ला के फाउंडर इलॉन मस्क ये भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, एंड ये टेस्ला से रिलेटेड एक प्लांट गुजरात में इनॉग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जस्टिस चंद्रशेखर, इन्होंने अपॉइंट किया चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट का, राइट। आई रिपीट, जस्टिस चंद्रशेखर को अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। मार्क करेंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 29 ऑफ दिसंबर 2023। ये किनको रिप्लेस करेंगे? संजय कुमार मिश्रा को ये रिप्लेस करेंगे, हु रिटायर्ड ऑन 28 ऑफ दिसंबर। करेक्ट, ये ही वॉज अपॉइंटेड एज द एडिशनल जज ऑफ द झारखंड हाई कोर्ट इन 2013, और अब इनको यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट अपॉइंट किया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन की तरफ। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम गेव द असेंट टू द 3 न्यू क्रिमिनल बिल्स एंड टेलीकम्युनिकेशन बिल ऑफ 2023। अमित शाह ने रिलीज किया एक पोस्टल स्टैम्प मार्किंग द 50 ईयर्स ऑफ पंडित जसराज म्यूजिक फेस्टिवल। आरबीआई ने अप्रूव किया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मर्जर। सेबी ने एक्सटेंड की डेडलाइन टू जून 2024 टू ऐड नॉमिनीज इन म्यूचुअल फंड्स एंड डीमेट अकाउंट। ओएनडीसी अनाउंस 2 सेपरेट पार्टनरशिप विद गूगल एंड मेटा। एचडीएफसी बैंक ने रिकमेंड किया रीअपॉइंटमेंट ऑफ अतानु चक्रवर्ती एज द चेयरमैन फॉर 3 ईयर्स। आईओए इन्होंने फॉर्म किया एक 3 मेंबर का एडॉक कमेटी टू रन ऑपरेशंस ऑफ द सस्पेंडेड डब्ल्यूएफआई। आरबीआई ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ सीएस रंजन एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ केएमबीएल। नेक्स्ट है पाकिस्तान सीसीआई, इन्होंने प्रूव किया एक्विजिशन ऑफ कंट्रोलिंग स्टेक इन आरसीएल बाय आईएचएल बीएफएसआई एंड एशिया। एंड पाकिस्तान का हम देख चुके हैं ये फतेह 2 रॉकेट सिस्टम रहेगा। नासा का मिशन था ओसाइरस एपेक्स टू स्टडी द अपोफिस एस्ट्रॉयड, जो कि 2029 में फ्लाई बाय करेगा अर्थ से। देन फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन जैक डेलोरस, इनका निधन हो गया। एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन विजयकांत, इनका निधन हो गया। हुडको ने कोलैबोरेट किया गुजरात गवर्नमेंट के साथ टू फाइनेंस हाउसिंग एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। जस्टिस चंद्रशेखर, इनको अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक डील साइन करी कि कितने नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल प्रोक्योर करने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। तो 6 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स प्रोक्योर करने की बात की गई फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। ये जो आपके 6 ऑफ न्यू जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल रहेंगी, ये मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा बनाए जाएंगे। और इनके लिए कॉन्ट्रैक्ट जो मिला था इनको 1614.89 करोड़ रुपए के लिए मिला था, ठीक है। और ये डिलीवर किए जाएंगे आने वाले 5.5 से 6 सालों में टू द इंडियन कोस्ट गार्ड। फिर इसी के साथ साथ एक और चीज याद रखेंगे, कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड, राइट। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया वर्थ 488.25 करोड़ रुपीस का, ताकि जो शिप की रिपेयर और मेंटेनेंस है ना उसका ध्यान कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड रखेगा, राइट। तो जो भी इंडियन नेवल वेसल्स होते हैं, इंडियन नेवल शिप्स होते हैं, उनमें जो भी आपके इक्विपमेंट की मेंटेनेंस होगी, रिपेयरमेंट होगा, वो कौन करेगा? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। एंड उसके लिए कितने का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ? 488.25 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ये एक मिनी रत्ना कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर आती है। अगर मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की बात करें तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव सिंघल, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, और इसको एस्टैब्लिश किया गया 1934 में। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे मधु एस नायर, हेडक्वार्टर कोची केरला, एंड 1972 में इसको एस्टैब्लिश करा गया। नेक्स्ट पे आते हैं, किन्होंने लॉन्च किया एनजीडीआर पोर्टल एंड अ रोड शो ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। एनजीडीआर क्या है? सबसे पहले तो ये देखते हैं,
नेशनल जियोसाइंस डाटा रेपोजिटरी। ये एक रेपोजिटरी है, एक बंडल रहेगा रिसोर्सेज का, जहाँ पर कोई विजिट करके जो डाटा है वो एक्सेस कर सकता है। जो भी आपका सारा डाटा रहेगा रिलेटेड टू इट, वो यहाँ से एक्सेस किया जा सकेगा। तो ये जो NGDR पोर्टल है, ये किसके द्वारा भी लॉन्च किया गया था? तो याद रखेंगे, नाम यहाँ पे चेंज कर लेंगे, प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी, इनके द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन ऑफ 1 ठीक बनता है। ठीक, इनके द्वारा ही यहाँ पे NGDR पोर्टल, जो कि है नेशनल जियोसाइंस डाटा रेपोजिटरी पोर्टल एंड अ रोड शो ऑन क्रिटिकल मिनरल्स, इसको लॉन्च किया गया इन न्यू दिल्ली। ये जो NGDR पोर्टल है ना, ये एक फ्लैगशिप इवेंट रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का, जो कि नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी 2016 के अंडर इसको लॉन्च किया गया था। इसका एम रहेगा टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस ऑफ द माइनिंग सेक्टर इन इंडिया। करेक्ट। एंड यहीं पे अगर देखें जो NGDR पोर्टल है, इसके बारे में अगर देखें, ये एक फ्लैगशिप इवेंट है, हम देख चुके हैं। और इस पोर्टल के अंदर ही हम देख पाएंगे कि जो लोग हैं वो डाटा को यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। मैप सर्विसेज, 35 मैप सर्विसेज, जैसे आपकी जियोलॉजिकल, जियोकेमिकल, जियोफिजिकल, डाटा लेयर्स, ये सारी चीज़ें भी एक्सेस कर पाएंगे लोग। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सा फाउंडेशन डे, विच फाउंडेशन डे ऑफ AIIA, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, यह भी ऑब्जर्व किया गया रिसेंटली। तो AIIA का कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया गया अभी रिसेंटली? तो ये पहला एडिशन रहेगा AIIA का, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का, जो कि गोवा में है। इसका पहले एडिशन ऑब्जर्व किया गया। इससे याद रखेंगे, ये 11 दिसंबर 2022 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और अब 11 दिसंबर 2023 में इसका पहला एडिशन ऑब्जर्व किया गया था। राइट, फर्स्ट फाउंडेशन है। इसके लिए एक इवेंट हुआ था। करेक्ट, कहाँ पर हुआ था? गोवा में हुआ था। उस इवेंट को AIIA एंड इंडिया पोस्ट ने मिलकर ऑर्गेनाइज कराया था। करेक्ट। और याद रखेंगे, इसी के दौरान यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने और उनके मिनिस्टर, या फिर हम बोलें सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, उनके द्वारा एक कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प भी लॉन्च किया गया टू मार्क द फर्स्ट फाउंडेशन डे ऑफ AIIA गोवा। राइट। नेक्स्ट बात करते हैं रेड लिस्ट की। मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। रेड लिस्ट क्या होती है? ये वो लिस्ट होती है जिसमें आपके थ्रेटन्ड स्पीशीज का जिक्र होता है। राइट, मतलब ये स्पीशीज आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। राइट, तो उन स्पीशीज को यहाँ पर इस रेड लिस्ट में लाया जाता है। पूछा जा रहा है ये रेड लिस्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की जाती है? तो IUCN। ये बहुत इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। राइट, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा इस रेड लिस्ट को रिलीज किया गया। और अभी COP28 के दौरान ये रेड लिस्ट की जो अपडेटेड वर्जन है ना, उसको यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था, जिसमें से बताया गया 1,57,190 स्पीशीज को यहाँ पे लिस्ट किया गया इन द रेड लिस्ट, आउट ऑफ विच 44,016 स्पीशीज ऐसी हैं दैट इज थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन। ठीक, IUCN की बात करूँ तो हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर रहेगा, एंड 1948 में इसको एस्टैब्लिश करा गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस की। तो अभी रिसेंटली RBI ने रेजर पे, कैश फ्री एंड 4 अदर फर्म्स को अभी अप्रूवल दे दिया है टू एक्ट एज पेमेंट एग्रीगेटर। राइट, पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे इनको अप्रूवल मिल गया है। अब ये अपने कस्टमर्स को, न्यू कस्टमर्स को ऑनबोर्ड कर सकते हैं। पहले इनके पास परमिशन नहीं थी, इन पे बैन लग गया था। ये नए अपने पेमेंट कस्टमर्स को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी RBI के अप्रूवल के बाद टू एक्ट एज पेमेंट एग्रीगेटर ये ऑनबोर्ड कर सकेंगे। यहाँ पर आप देखें तो जो कंपनी है जो जिनको अप्रूवल मिला वो है रेजर पे, दूसरा आ जाता है कैश फ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा आ जाता है फिर आपका नियो बैंक जो है ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, चौथा आ जाता है आपका एनकैश। राइट, और पांचवा आ जाता है आपका गूगल पे, जी पे जिसको हम कह देते हैं गूगल पे। राइट, इनको पेमेंट एग्रीगेटर का भी अप्रूवल मिल गया बाय RBI। राइट, और पेमेंट एग्रीगेटर कौन होते हैं? ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर वो कंपनियां होती हैं जो कि ऑनलाइन पेमेंट लेती हैं बिटवीन द कस्टमर एंड द मर्चेंट। राइट, वो एक मीडिएटर का काम करती हैं कि आप एक जगह से पैसा लेके दूसरे को दे दो। जैसे फॉर एग्जांपल पेटीएम है। राइट, पेटीएम क्या करता है? आपका पैसा लेता है और जिसको आप पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप दुकान पे कर रहे हैं तो दुकान वाले को पेमेंट दे देता है। तो एज अ बीच में वो फैसिलिटेटर का काम कर रहा है, तो वो एक पेमेंट एग्रीगेटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। What organization आएगा? Which organization sets up a task was to study recommendations on IEG
टास्क फोर्स दैट वाज टू स्टडी रिकमेंडेशंस ऑफ आईईजी एंड एमडीबी रिफॉर्म। देखो ये आईईजी क्या है एंड ये एमडीबी क्या है। एमडीबी होता है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, राइट। ये अभी इनका ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स अभी इस्टेब्लिश किए गए थे, राइट, आफ्टर द रिकमेंडेशन ड्यूरिंग इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। फिर यहीं पे याद रखेंगे इसी के दौरान आईईजी इंटर गवर्नमेंटल इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप्स ये भी एक सेटअप किए गए, क्योंकि अभी क्या देखा गया कि जो एमडीबी है ना, ये 9 कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे वर्ल्ड बैंक के साथ, तो इनके ऊपर वर्क करने के लिए, इनके ऊपर स्टडी करने के लिए और अच्छे से कि क्या क्या चीज़ों को हम और बेटर कर सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप्स ये सेटअप किए गए थे अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। एंड ये रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेंगे कि कैसे हम मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं एंड इनके बारे में और चेंजेस हम यहाँ पे ला सकते हैं। तो पूछा जा रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे एक टास्क फोर्स सेटअप करी, तो ये टास्क फोर्स किसने सेटअप करी, जो इनके साथ 9 कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन रहेंगे, अजय बंगा जी। तो उनके साथ उन्होंने यहाँ पे ये टास्क फोर्स सेटअप करा ताकि जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनके ऊपर और रिसर्च की जा सके और उनको स्ट्रेंथन करने का और तरीके ढूंढे जा सके। ठीक, इंडिया की प्रेसिडेंसी कब थी G20 की, तो 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक यहाँ पे इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, फिर अगर यहीं पे बात देखें, ये है अजय बंगा जी, राइट, प्रेसिडेंट है ये वर्ल्ड बैंक के। यहीं पे देखें तो जो वर्ल्ड बैंक है, अग्रीमेंट रहा है 9 मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक के साथ, वो क्या रहेगा, स्केलिंग ऑफ फाइनेंसिंग कैपेसिटी, जो बूस्टिंग कलेक्टिव एफर्ट्स है क्लाइमेट पर, उस पर फोकस किया जा सके, एनहेंसिंग कंट्री लेवल कोलैबोरेशन, स्ट्रेंथनिंग को फाइनेंसिंग एंड कैटलाइजिंग द प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट। और हम जानते ही हैं कि 2030 तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना चाहते हैं एंड इसके लिए जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग लगेगी ना, उसमें बताया जा रहा है कि हमें काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस करना पड़ेगा, जब जाके हम यहाँ पे इनको अचीव कर सकेंगे। ठीक, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स कौन से हो गए, जैसे आपका अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन डेवलपमेंट बैंक, राइट, देन यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक हो गया, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, राइट। तो ये आपके मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं सारे। मूविंग ऑन, किस बैंक ने सिक्योर किया एक मैंडेट टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑन ई-ग्रेस पोर्टल फ्रॉम असम। GRAS क्या है, ये आपका गवर्नमेंट रेसिपेट अकाउंटिंग सिस्टम। तो अभी बंधन बैंक ने यहाँ पर साइन किया एक ऑथराइजेशन ताकि ये कलेक्ट कर सके E-GRAS पोर्टल, राइट, रेवेन्यू थ्रू E-GRAS पोर्टल। इससे क्या होगा, जो कि सिटीजन्स रहेंगे असम के, वो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे थ्रू दिस E-GRAS पोर्टल, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड पेमेंट हो, चाहे वो नॉन टैक्स की पेमेंट हो। यहाँ पर आपको कोई बिल पे करना है, यहाँ पर आपको टैक्स पे करना है, यहाँ पे आपको हाउस टैक्स देना है, राइट, यहाँ पे आपको नया लाइसेंस रिन्यूअल कराने के लिए पेमेंट करनी है, आपको वाटर का बिल पे करना है, कोई एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है असम के द्वारा, उसका फी पेमेंट करनी है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे असम के लोग कर सकेंगे ऑन दिस E-GRAS पोर्टल, जो कि लॉन्च किया गया किसके द्वारा, बंधन बैंक के द्वारा। ठीक है, बंधन बैंक की बात करें तो CEO कौन रहेंगे, चंद्रशेखर घोष। कोलकाता वेस्ट बंगाल में हेडक्वार्टर रहेगा एंड इसको 2001 में स्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट, हु वन द 6th रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज फॉर हर बुक सॉल्ट एंड पेपर। तो छठे रविंद्रनाथ टैगोर प्राइज फॉर लिटरेसी से किनको सम्मानित किया गया, वो है सुकृता पॉल कुमार, राइट। सुकृता पॉल कुमार ये एक इंडियन पोएट, क्रिटिक एंड ट्रांसलेटर है, जिनको ऑनर किया गया छठे रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज से। और किस बुक के लिए, इनके बुक का नाम रहेगा सॉल्ट एंड पेपर। इस बुक को पेपर वॉल पब्लिशिंग के द्वारा पब्लिश किया गया है। ठीक, फिर इसी के अलावा याद रखेंगे अभिजीत बनर्जी, इनको 2018 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था फॉर इकोनॉमिक्स, राइट। एंड इन्होंने अभी रिसीव किया रविंद्रनाथ टैगोर प्राइज फॉर सोशल अचीवमेंट्स 2023, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज से तो सुकृता पॉल कुमार, अगर बात किया जाए रविंद्रनाथ टैगोर प्राइज फॉर सोशल अचीवमेंट 2023 से अभिजीत बनर्जी को सम्मानित किया गया। ठीक, मार्क करेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज बेसिकली अवार्ड दिया जाता है इंडियन ऑथर्स को जो कि नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज, पोएम, ड्रामा ये लिखते हैं। और यहीं पे भी सुकृता पॉल कुमार को $10,000 से सम्मानित किया गया एंड एक होममेड ब्रास स्टैचू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर जी, राइट, वो भी इनको यहाँ पे दिया गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट बात करें सुकृता पॉल कुमार की, ये बॉर्न एंड रेज कहाँ है, कीनिया में हुई, राइट। और फिर इनको यहाँ पर अभी 2010 में शी रिसीव द ग्रांट फ्रॉम साहित्य अकेडमी अवार्ड
एंड 2012 में इनको फेलोशिप, टैगोर फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। चलिए, ये हैं आपकी सुकृता पॉल कुमार। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, विच स्पेस इंस्टीट्यूशन रिसीव्ड 2023 LEIF एरिक्सन लूनर प्राइज फॉर चंद्रयान 3 प्राइज, राइट? तो वो है इसरो, हमारा इंडिया का इसरो। इन्होंने अभी रिसीव किया 2023 लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज फॉर चंद्रयान 3। ये लीफ एरिक्सन अवार्ड दिया जाता है ना, बेसिकली ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है जब आप कोई एक्सप्लोरेशन करते हैं, राइट? जब आप कोई एक्सप्लोरेशन करते हैं उससे रिलेटेड ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है। जो आप एक्सप्लोरर होते हैं, राइट, कोई खोज करते हैं, कोई नई चीज़ आपने ढूंढी, उसके लिए यहाँ पे आया, आपने कोई नई चीज़ करी, एक्सप्लोर करा, तो उसके लिए ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। चंद्रयान 3 को क्यों दिया गया? क्योंकि इससे इंडिया वो पहला नेशन बन गया, पहली कंट्री बन गया इन द वर्ल्ड जिन्होंने लैंड किया नियर द साउथ पोल ऑफ द मून। ठीक, तो लीफ एरिक्सन का ये 9th एडिशन था इस अवार्ड का। किसको सम्मानित किया गया? किस इंस्टीट्यूशन को? इसरो को यहाँ पे सम्मानित किया गया। अच्छा, इसी के साथ साथ एक दो चीज और याद रखेंगे। ये तो था आपका लूनर प्राइज के लिए लीफ एरिक्सन। अगर लीफ एरिक्सन अवार्ड पूछा जाए फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, वो किसको सम्मानित किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट से? तो वो है बिल एंडर्स। इनको सम्मानित किया गया लीफ एरिक्सन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। और लीफ एरिक्सन यंग एक्सप्लोरर अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? वो है केली जेरार्डी, राइट, केली जेरार्डी से। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, एक्ट्रेस आस्था रावल, इनको क्राउन किया गया विद मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 के टाइटल से। आई रिपीट, आस्था रावल, इनको क्राउन किया गया विद मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 के टाइटल से। ये जो पीजेंट टाइटल हुआ था इंडिया में हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड आस्था रावल को क्राउन किया गया विद द टाइटल ऑफ बेस्ट इन इंटरव्यू एंड बेस्ट इन स्विमवेयर कैटेगरी में, राइट? ये जो सिलेक्शन प्रोसेस थी इसकी ऑनलाइन सबमिशन से हुई थ्रू ऑनलाइन इंटरव्यूज, फोटोग्राफ्स एंड पर्सनल स्निपेट्स। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, विच इंडियन मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द फेम इंडिया स्कीम? दूसरा, यूनियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रिवाइव टैक्स रेमिशन बेनिफिट्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ विच आइटम दैट वाज प्लेस्ड इन द रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी इन मिड 2022? तीसरा, विच प्लेयर रिसेंटली क्लिंच्ड द चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 टाइटल? चौथा, रिसेंटली यूपी हैज इनॉग्रेटेड द स्टेट्स फर्स्ट इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस बिटवीन विच टू डिस्ट्रिक्ट्स? पांचवा, इंडिया का पहला हिमालयन एयर सफारी वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए आप सभी से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.